to view my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So I'll be teaching you today about transport layer and its protocol, TCP, UDP, and SCTP. So we don't have that much time to discuss everything. So we'll discuss only transport layer and TCP in today's lecture, and UDP and SCTP will discuss tomorrow. So is that fine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's start. So hope you all are aware about OSI model and everything is in from the previous classes, right? Yes, sir. Okay, sure. Thanks. And so also I just missed to mention that I am taking this class on behalf of Yash, who is on vacation. So yeah, go ahead. Let's go ahead. So we'll start with what is transport layer. So also I'll be sorry to say you guys that this is mostly a theory class. So there won't be any practical available, because once you learn the theory part, then you'll be able to go through with the practicals. Okay. So this is this thing you need to learn by heart, because this is one of the most important protocols and it's very easy. Trust me. Or if you have any doubt, uh, पूछ सकते हो मेरे से at the time. Okay, I guess Hindi and English both is fine with you guys, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine then. So let's start with what is transport layer. So the transport layer is layer 4 of the operating system interconnection, which is an OSI model, and it is responsible for ensuring that the data packets arrive accurately and reliably between sender and receiver. So what happens? This is an OSI model. So the transport layer sits here, just below application layer, and then above network layer. So this is what it is saying, that transport layer most often it is responsible if the data packets arrive accurately and reliability between sender and receiver. So if you are sending data, suppose I am sending data, I'm the sender. So tell me which layer I would be using if I'm sending the data first. Tell me, guys, you have already learned about OSI. If you are sender, on which layer you'll be working on initially? The application layer. True, correct. So this is what it is saying, that the transport layer is responsible for ensuring the data packets arrive accurately and reliability between sender and receiver. So if the sender is sending data from application layer, and when receiver is receiving data, it receives the first layer will be the physical layer. Okay. So the transport layer most often uses TCP or UDP. These are the protocols of transport layer, which is TCP and UDP, which we'll discuss in brief in the later section. But just to keep in mind, just you need to remember that these are the two protocols which TCP with transport layer uses to transfer data. Because all these layers, they are just layers, but the main thing about these layers are that they work on, every layer has a protocol on which they work on, right? So Yes, in the sir. TCP/IP network model, the transport layer comes between the application and network layer. So this is a TCP/IP model, which it's come between application. These three layers are called as application layer, and last two is the physical layer. Okay. In the OSI model, transport layer sits between network layer and session layer. The network layer is responsible for taking data packets and sending them to the correct computer. This is what the network layer does. The transport layer then takes the received packets. So the packets checks them for error and sorts them. So when you receive some data, so network layer sends data to transport layer, and then transport layer receives those data. This is what is written here. And it also checks those data if the data is received as when it was sent, and if data, and then it sorts them. Then it sends them to the session layer for correct program running on the computer. So we'll discuss this about in brief, that how it does that.
Session layer now takes the well formatted packets and use them to the application data. ठीक है, नेटवर्क लेयर से डेटा आया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर ने डेटा को सेगमेंट किया, चेक किया एवरीथिंग और सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद इट सेंड्स इट टू सेशन लेयर, और सेशन लेयर क्या करता है, देन इट फॉरवर्ड्स इट टू द करेक्ट रनिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। अभी देखो ये एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, हाउ ट्रांसपोर्ट लेयर यू शुड इमेजिन इन योर माइंड दैट imagine a computer in a big company with many departments. Okay, एक कंप्यूटर मान लो एक बिग कंपनी का पार्ट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी में, और जो डेटा पैकेट डेटा सेंड हो रहा है वो जस्ट इमेजिन देम एज अ लेटर्स। ओके, सो नेटवर्क लेयर इज लाइक अ पोस्टल सर्विस। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, वो एक सब पोस्ट ऑफिस टाइप का है जो कि दैट गेट्स लेटर टू द करेक्ट एड्रेस टू द कंपनी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज लाइक द कंपनी मेल रूम। It receives the letters and does the initial inspection. Any letter that were damaged in transit or delivered to the wrong address, it reports to the sender. It then sorts the letters by department, puts them in time in order of the oldest to newest, and then delivers them inside the company to the correct department. The department or application in this case then takes the letter to read them and can build an understanding of back and forth correspondence and do whatever work is needed for the letter. ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप जस्ट इमेजिन करो कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करता है। इसमें कोई डाउट है आपको अभी तक? तो लेट मी नो देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। नो डाउट सर। कूल, जब भी डाउट हो लेट मी नो एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। अभी हम आते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। Okay, just do me a favor guys, whoever has joined, just in chat just send me hi so that I would have your attendance recorded. Okay, is it fine? Okay, sir. Yeah, sure. Thank you. Okay, now moving on. A transport layer takes services from application layer. As I have mentioned, these are application layer. अगर तुम sender हो तो it takes services from application layer. ठीक है? And provide services to the network layer. If you are sender, then I'm telling you, sender application layer से आपने application किया, आप suppose किसी को mail भेज रहे हो, so this Outlook is an application which you are using, so you are sending an email, so the transport layer takes that mail format from you, and then what it says, it provides services to the network layer. At the sender side, the transport layer receives data from application layer and then performs segmentation. एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, उसने डेटा को सेगमेंट किया, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में डेटा को डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करता है, एड्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, जिस सोर्स कहाँ है, मतलब आपका जो सोर्स है वो, और जो डेस्टिनेशन कहाँ जाना है डेटा को, वो उसने ऐड कर दिया उस डेटा पैकेट में एक हेडर बना के। ठीक है, एंड देन ट्रांसफर द मैसेज टू द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के पास भेज दिया कि यहाँ से डेटा आया है, डेटा को यहाँ जाना है। और रिसीवर एंड पे क्या करता है, अगर आप डेटा रिसीव कर रहे हो तो पहले आप फिजिकल लेयर से आएगा, फिर नेटवर्क लेयर के पास जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा। तो उस रिसीवर एंड में क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर, जो डेटा यहाँ सेगमेंट हुए हैं उनको वो असेंबल करता है, हेडर को रीड करता है कि हेडर में क्या है, पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एंड फॉरवर्ड द मैसेज टू द appropriate port of application layer। भी यहाँ से डेटा आया इसके पास, इसने पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई किया। पोर्ट नंबर I guess you would have known by now what is port numbers, right? There are different ports for different applications. तो अभी अगर मेल आया है तो वो SMTP के पास जाएगा, उसका एक डिफरेंट पोर्ट है, तो पता चल जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर उसको मेल भेजेगा। अगर कुछ वेबसाइट एक्सेस करना है तो HTTPS को भेजेगा। ठीक है, तो ये करता है ये काम। अभी तक कोई डाउट है गाइस? No, sir. ठीक है, cool. अभी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर्स के। ओके, सॉरी, तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट्स, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, कंजेशन कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी एंड एरर करेक्शन, और फ्लो कंट्रोल। तो हम एक एक चीज देखेंगे अभी क्या कैसे होता है। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्या है, तो जैसे कि डेटा लिंक लेयर को मैक एड्रेस चाहिए होता है, तो एक मैक एड्रेस एक 48 बिट एड्रेस होता है जिसमें NICs होते हैं, और ये हर मशीन पे
अपना एक यूनिक होता है। तो while data link layer requires a MAC address of source host to correctly deliver a frame of net frame and the net and frame and और network layer को क्या होता है, IP एड्रेस चाहिए होता है ताकि वो सही पैकेट्स को सही एड्रेस पे भेज सके। तो इस सिमिलर वे में ट्रांसपोर्ट लेयर्स को पोर्ट नंबर्स चाहिए होते हैं टू करेक्टली डिलीवर सेगमेंट्स ऑफ डेटा टू द करेक्ट प्रोसेस among the multiple process running on a particular host। ठीक है, port number is 16-bit address used to identify any client server programs uniquely। एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट बनाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट। और ये मेनली कोई भी, वैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी जो लेयर्स हैं वो लेयर्स होते हैं बट उनके पीछे प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी वजह जो कि मेजरली काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के मेजर प्रोटोकॉल्स दो हैं, टीसीपी एंड यूडीपी, जो कि बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो टीसीपी इज, और हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे भी। टीसीपी के बारे में आज पढ़ेंगे, यूडीपी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो TCP is what is TCP? TCP होता है is a secure connection oriented protocol होता है and that uses handshake protocol to establish a robust connection between two end hosts. TCP ensures the reliable delivery of messages and is used in various applications. UDP on the other hand is a stateless and unreliable protocol that ensures best effort delivery. It is suitable for applications that have little concern with flow of error control and requires sending the bulk of data like video conferencing. It is often used in multicasting protocols। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मेनी टू वन इन is when data is acquired from several processes from a sender and merged into one single packet along with headers and sent as a single packet। Multiplexing allows the simultaneous use of different processes over a network that is running on host। Multiplexing क्या करता है, जैसे कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो या किसी को कुछ भी डेटा भेज रहे हो और वो डेटा जो है मल्टीपल फॉर्म्स में, तो उसको क्या करेगा, और मल्टीपल ऐप्स पे, तो उसको कोलेट करके एज अ सिंगल डेटा पैकेट भेजेगा। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। मतलब मल्टीपल डेटा सोर्सेज को एक साथ कलेक्ट करके उसके अंदर एक हेडर लगाना और उसको होस्ट को भेजना। डीमल्टीप्लेक्सिंग उल्टा होता है मल्टीप्लेक्सिंग का। ठीक है, तो वो रिसीवर साइड पे होता है कि बहुत अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहे हैं तो वो उस डेटा को अलग अलग सोर्सेज पे भेजेगा। is required at a receiver side when a message is distributed into different processes। Transport receives the segments of data from network layer, distributes and delivers it to the appropriate process running on the receiver's machine। Multiplexing gathers data from multiple application processes of sender, उसको envelop करता है data with header and sends them as a whole। data को एक whole चीज में बना के भेजता है। ठीक है, different type of data को। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, उसका उल्टा करता है। डिलीवर रिसीव सेगमेंट टू अ रिसीवर साइड टू अ करेक्ट ऐप लेयर प्रोटोकॉल इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग। अभी ये देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम एन एप्लीकेशन ऑन सेंडर साइड टू एन एप्लीकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन साइड, द सेंडर मस्ट नो IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन एंड पोर्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन to which he wants to transfer the data। भी डेटा शेयर करना है तो आप किसी को मेल ही भेजना तो आपको उसको उसका ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, राइट। तो ये सब बैकग्राउंड में होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डेटा भेज रहे हो और किसको भेज रहे हो। अभी कैसे होता है मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्स को डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा पूरा। सो लेट्स कंसीडर टू, अभी तो मैसेजिंग एप्स को कंसीडर करते हैं। जैसे कि पहले होता था, थोड़े दिन पहले हाइक भी होता था, अभी हम व्हाट्सएप बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज एक आदमी है जिसको कि ए सेंडर है और बी रिसीवर, जिसको कि मैसेज भेजना है बोथ। ठीक है, और बोथ सेंडर एंड रिसीवर के पास हाइक और व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है उनके फोन में। तो A wants to send a message to B in WhatsApp and hike both। In order to do so, A must mention the IP address and B is the destination port number where of the WhatsApp while sending the message through the WhatsApp application। ये बैकग्राउंड में हो रहा है ये काम, सॉरी, बट आपको उसका नाम पता होना चाहिए जिसको क्या मैसेज भेज रहे हो, राइट। Similarly, for letter case, A must mention IP address of B and destination port number of the hike while sending the messages। So now the message from both apps will be wrapped up along with an appropriate header, that is source IP, destination IP address, source port number, destination port number। ठीक है, and sent as a single message to the receiver। यहाँ देखो, ये WhatsApp है, ये hike है,
ये दोनों एक ही को जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो दोनों मैसेजेस हैं ये दोनों रैप हो गए हैं, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, क्योंकि जा एक ही लोग के पास रहा है, भेज भी एक ही रहा है, बट क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं। At the destination, the receiver receive the message is wrapped and constitute messages and then send it to appropriate application by looking into the destination port numbers. This process is called demultiplication. Similarly, B can also transfer the message to A. ठीक है, यहाँ आया, ये इसके पास गया, फिर जब उसके फोन में मैसेज आया तो उसके पास दो ऑलरेडी एप्लीकेशन है, तो वो दोनों मैसेजेस हैं वो यहाँ पे स्प्लिट हो गए, एक व्हाट्सएप पे चला गया, एक हाइप पे चला गया। बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल to show you how what is the actual meaning of multiplexing and demultiplexing. इसमें कोई डाउट है आपको अभी तक? नो सर। ठीक है, No, sir. चलो अभी हम आते हैं कंजेशन कंट्रोल पे। तो कंजेशन इज अ सिचुएशन इन विच too many sources over a network attempt to send a data and the router buffers start overflow due to which loss of packets होता है। मतलब बहुत ज्यादा सोर्सेज हो गए हैं नेटवर्क के ऊपर और नेटवर्क कंसिडर नहीं कर पा रहा है उनको कैसे भेजे डेटा, तो उस टाइम कंजेशन हो जा रहा है। तो क्या होता है, retransmission of packet from sources increase the congestion further. In this situation transport layer provide, तो ट्रांसपोर्ट लेयर कंजेशन कंट्रोल प्रोवाइड करता है ताकि डेटा जो है वो सीमलेसली फ्लो करे। It uses one loop congestion control to prevent congestion and closed loop congestion control to remove the congestion in a network once it occurred. So TCP provides AIMD, which is additive increase multiplicative decrease and leaky bucket technique for congestion control। ये जो टेक्निक यूज करता है एक कंजेशन कंट्रोल के लिए। डेटा इंटीग्रिटी और एरर हैंडलिंग भी करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर चेक्स फॉर द एरर्स इन द मैसेजेस कमिंग फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर बाय यूजिंग एरर डिटेक्शन कोड्स एंड कंप्यूटिंग चेकसम्स। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। इट्स जस्ट फॉर यू टू नो कि ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इट चेक्स वेदर द रिसीव्ड डेटा इज नॉट करप्टेड एंड यूज द acknowledgement and non-acknowledgement, which is we refer as ACK and NACK service, to inform the sender if the data has arrived or not and checks for integrity of data. जैसे आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो आपको जो भी भेज रहे हो वो रिसीवर के पास सही तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में अब कैसे होता है, विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस, ये एक्नॉलेजमेंट और नॉन एक्नॉलेजमेंट कैसे काम करता है आगे। बट अभी आपको याद रखना है कि डेटा इंटीग्रिटी एंड एरर करेक्शन भी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। फ्लो कंट्रोल भी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोवाइड्स अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म बिटवीन adjacent layers of the TCP/IP model. Transport layer prevents data loss due to the fast sender and slow receiver by imposing some flow control technique. अभी जैसे कि आप 100 Mbps से डेटा किसी को भेज रहे हो किसी के फोन में, और वो फोन में मैक्सिमम 50 Mbps ही डेटा रिसीव करने का कैपेसिटी है, तो वो फोन आपको कनेक्ट करके बोलेगा कि प्लीज सेंड डेटा टू मी एट द स्पीड ऑफ ओनली मैक्सिमम अप टू 50 Mbps, so the sender will adjust to that. It uses the method of sliding window protocol, which is accomplished by the receiver by sending a window back to the sender informing the size of data it can receive. ठीक है, अभी ये इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी इश्यूज? नो सर। ठीक है, I would say कि you would see too many repetitive slides from me and that is all because I want you to, अगर मैं रिपीट करते रहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा आप यू कैन गेट टू नो कि अच्छा अच्छा हाँ ये बताया था, ये ऐसे होता है ऐसे होता है, ठीक है। यस सर। अभी वर्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर देखते हैं कैसे काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम इज डिपेंडेबल एंड इफेक्टिव थैंक्स टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटिंग फ्लो एंड accommodating numerous application concurrently, it guarantees data delivery in a manner that guarantees accuracy and minimizing mistakes, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर अभी तो हमने पढ़ा कैसे सब चीज रेगुलेटिंग फ्लो, डेटा को फ्लो रेगुलेट करता है। न्यूमरस एप्लीकेशन आपके डिवाइस चल रहे हैं तो भी डेटा डिलीवरी हो जाता है आपके, और मिस्टेक्स नहीं होते हैं, जैसा डेटा चाहिए होता है वैसा डेटा मिलता है। तो इट accomplishes this by utilizing a collection of method and protocol that provide data to transport। अभी जैसे कि सेशन लेयर से डेटा आया है तो डेटा को इसने, अभी मैंने बताया था आपको, डेटा को सेगमेंट कर देता है, उसके आगे हेडर लगाता है, हेडर में सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी जो होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ में, और फिर इस डेटा को आगे भेज देता है, ठीक है, टू नेटवर्क लेयर। अभी नेटवर्क लेयर डेटा आता है तो फिर वो चेक करता है
कि भाई सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर्स क्या है, और पोर्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग डेटा को सेशन लेयर को भेजता है, कि बोलता है कि जाओ ये ईमेल का है, ये वेब ब्राउजर का है, ये एफटीपी का है, तो उसको अलग अलग पोर्ट्स के हिसाब से डेटा को भेज देता है, जहाँ जो जिस तरीके का डेटा है। वर्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर फोर्थ लेयर है, ये आपको याद रखना है ओएसआई मॉडल में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू गिव एप्लीकेशन प्रोसेस ऑपरेटिंग ऑन सेवरल होस्ट डायरेक्ट एक्सेस टू कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, अभी आप वेब ब्राउज करते हो, अभी कुछ भी आप ब्राउज करते हो वेबसाइट पे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो आप कुछ भी ब्राउज करते हो, गूगल.com खोलते हो, तो दैट आपका कनेक्शन होता है गूगल के साथ, तो वो एक कम्युनिकेटेड रहता है, कनेक्टेड रहता है। Logical communication between application process operating on a separate host is facilitated by a transport layer। अभी मैं इस कंप्यूटर पे आपको पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ ब्राउजर भी मेरा खुला हुआ है, तो ये सब इट्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, वो मल्टीपल एप्लीकेशन को फैसिलिटेट करता है। एप्लीकेशन प्रोसेसेस यूज द लॉजिकल कम्युनिकेशन ऑफर्ड बाय अ ट्रांसपोर्ट लेयर टू डिलीवर मैसेजेस ऑन वन other than even when they are running on a different host and are not physically connected. The network routers do not implement the transport layer protocol, only the end systems do. ठीक है, for instance, the network layer receives services from TCP and UDP, the two transport layer protocol, which offer distinct functionalities. Protocol at transport layer offer multiplexing, demultiplexing capabilities, ये हम पढ़ चुके हैं। ये TCP UDP भी हम आगे भी पढ़ेंगे, और पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्रोटोकॉल्स दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। ठीक है, जो कि डेटा भेजने में काम करता है, और कैसे डेटा भेजते हैं इसके बारे में हम आगे काफी डिटेल में पढ़ेंगे, TCP UDP के बारे में। In addition, it offers the services including bandwidth assurance, latency guarantees, and dependable data transport. Every application at the application layer is capable of sending messages via either TCP or UDP. Either of these two protocols can be used by the application to interact. The internet protocol on the internet layer will then be communicated with by both TCP and UDP. The transport layer is readable and writable by the applications. ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज टीसीपी। तो टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, और इट इज वन ऑफ द मेन प्रोटोकॉल्स ऑफ टीसीपी आईपी। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल्स। सो इट लाइज बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लेयर। ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट, which are used in providing reliable delivery services. ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर्स रिलायबल एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। ये मेक श्योर करता है कि जो भी डेटा है वो जो है वो इफिशिएंटली हो जाए ट्रांसफर, और विदाउट एनी टेम्परिंग वो डेटा ट्रांसफर हो। It plays a crucial role in managing the flow of data between computers, guaranteeing the information it delivers accurately and in the correct sequence. ठीक है, Transmission control protocol, it is a connection oriented protocol for communication that helps in exchange of messages between the different devices over the network. The internet protocol, which is established the technique for sending data packets between computers, work with TCP। TCP के साथ IP भी काम करता है, which is an internet protocol, that is why it is called TCP IP। So अभी हमने देखा था OSI मॉडल में कि एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर वो बैठता है, और इसके अंदर दो मेन प्रोटोकॉल है, TCP or UDP, but here this is the position of TCP in the transport layer of OSI model. TCP also help in ensuring the information is transmitted accurately by establishing a virtual connection between sender and receiver. अभी TCP साथ IP भी आता है, तो IP क्या होता है? IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, is a method that is useful for sending data from one device to another from all over the internet. ठीक है, it is a set of rules governing how data is sent and received over the internet. It is responsible for addressing and routing packets of data so they can travel from the sender to the correct destination across multiple networks. Every device contains a unique IP address that helps it to communicate and exchange data across other device present on the internet. ठीक है, हर डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप लोगों को पता होगा, राइट। सर या वर्किंग ऑफ ट्रांसमिशन, अभी तक कोई भी डाउट है तो लेट मी नो गाइस, बेशक पूछिए डाउट, कुछ भी अगर डाउट है तो अभी तक जहां आपको लग रहा है ये समझ में नहीं आया ये बता दो ऑफिस से कैसे होता है, ठीक है। So shall I move ahead? यस सर।
ओके ठीक है। ये काम कैसे करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ब्रेक्स टीसीपी मॉडल ब्रेक्स डाउन द डेटा इनटू स्मॉल बंडल्स। ये हम काफी टाइम से सुन रहे हैं ना, बंडल स्मॉल बंडल में ब्रेक करता है स्मॉल बंडल, तो ये आपको याद रखना है कि ब्रेक्स द डेटा इनटू स्मॉल बंडल्स एंड आफ्टरवर्ड और बंडल में ब्रेक करके सेंडर के साइड से वो ब्रेक करता है और रिसीवर के साइड से रीसेंबल करता है, ठीक है। on so यही लिखा है यहाँ पे TCP model breaks down the data into small bundles and afterward disassembles the bundles into the original message on the opposite end to make sure that each message reach its target location intact, ठीक है। Sending the information in a little bundles of information makes it simpler to maintain efficiency as opposed to sending everything at one go. After a particular message is broken down into bundles, these bundles may travel along multiple routes if one route is jammed but the destination remains the same, ठीक है। छोटे छोटे बंडल्स में अभी एक बहुत बड़ा चंक ऑफ डेटा है, उसको एक साथ भेजने में तो हो सकता है कि डेटा करप्ट हो जाए या कुछ हो जाए, तो हमारा ट्रांसमिशन रिलायबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या करता है कि डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता है और उनको सीरियली भेजता है, ताकि अगर कोई कोई एक सिंगल पैकेट मिस भी हो गया डेटा का, तो वो वापस से उस पैकेट को रीसेंड कर दे। और वो अगर कोई पैकेट मिस भी हुआ तो पता चल जाता है, तो वो कैसे पता चलता है वो हम अभी आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। अभी ये एक समझने का तरीका है। जस्ट इमेजिन करो कि टीसीपी आईपी relationship is similar to sending someone a message written on a puzzle through the email. The message is written down and the puzzle is broken into pieces. That is your puzzle is a data segment which is broken down into pieces. Each piece can travel through a different postal route, some of which takes a longer than other, ठीक है। जैसा जो भी रूट अवेलेबल है डेटा को ट्रांसफर होने का, भी एक सपोज एक रूट बिजी है तो वो दूसरे रूट से भी डेटा भेज सकता है, ठीक है। When the puzzle pieces arrive, अब ये रिसीवर के पास जब आता है आफ्टर ट्रेवर्सिंग देयर डिफरेंट पाथ, दिस पीसेस में बी आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अभी कोई लंबा चल के आया है तो वो पीछे से आएगा, जो इजीली चला गया वो पहले पहुंच जाएगा, बट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। So IP makes sure the pieces arrive at the destination address. TCP can be thought of as a puzzle assembler on the other side who puts the pieces together in the right order, ठीक है। डेटा सेगमेंट्स को वो राइट ऑर्डर, जैसे कि पहले सेगमेंट्स को तोड़ा था, बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया था सेंडर एंड पे, तो रिसीवर एंड पे अभी डेटा रिसीव हो गया, बट किस ऑर्डर में हुआ है वो नहीं पता, क्योंकि जो छोटे छोटे डेटा आए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रूट से हैं, जो भी रूट उनको इजीली अवेलेबल था। कोई जल्दी आ गया, किसी को आने में देर हुआ, बट डेटा पहुंच गया। अभी ये क्या करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, कि वो जो डेटा को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करेगा, ताकि जिस ऑर्डर में डेटा आया था उसी ऑर्डर में डेटा रिसीव हो रिसीवर को। आस्क फॉर मिसिंग पीसेस टू बी, अगर कोई पीसेस मिस हो गए हैं तो वो क्या करेगा, वापस से वो पीसेस को बोलेगा सेंडर को कि वही पीसेस नहीं आए हैं, तो वो पीसेस वापस मंगाएगा, ठीक है। asks for the missing pieces to be resent and lets the sender know the puzzle has been received। और जब सारे डेटा रिसीव हो जाएंगे तो वो सेंडर को बताएगा भी, ठीक है, कि भाई तुमने जो डेटा भेजा था वो इस सीक्वेंस में आए हैं और वो रिसीव हो गए हैं, ठीक है। और ये TCP maintains the connection for the sender from before the first puzzle piece is sent and after the final piece is sent। तो जो पहला डेटा उसको रिसीव हुआ, जब तक आखिरी डेटा रिसीव नहीं हो जाए, सारा डेटा उसको रिसीव हो गया जैसा भेजा गया था, तभी वो तब तक वो ये कनेक्टेड रहते हैं, और जब सारा डेटा रिसीव हो जाता है तब कनेक्शन ब्रेक होता है, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक इसमें? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर, रिसीवर साइड पे टीसीबी को मतलब कैसे पता रहता है कि मतलब यही ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है? तो जब ये डेटा ब्रेक करता है ना, तो डेटा ब्रेक करने आगे डेटा के आगे एक हेडर लगाता है, वो आगे पढ़ेंगे, और उस हेडर में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, कौन सा किस सीक्वेंस पे डेटा, सीक्वेंस नंबर्स होते हैं किस सीक्वेंस में इसने ब्रेक किया है। जब रिसीवर को रिसीव होता है तो उसके पास भी वो सोर्स आईपी आता है, डेस्टिनेशन आईपी आता है, सोर्स पोर्ट नंबर्स आते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आते हैं, और उसके बाद उसमें आता है सीक्वेंस नंबर्स, ठीक है। तो अभी सीक्वेंस नंबर समझ लो एक है, तो पहला सीक्वेंस रिसीव हुआ, 2 3 4, तो अभी मान लो कि पहले एक आया फिर 4 आ गया, 3 और 2 और 3 नहीं आया, तो फिर ये चेक करेगा कि 2 और 3 आए कि नहीं आए। अगर आ गए हैं तो फिर वो उनको सॉर्ट करेगा 1 2 3 4 में, ठीक है, और उसके बाद आगे भेजेगा, ठीक है। यस सर। ओके, अभी आगे मैं बताऊंगा डिटेल में ये कैसे करता है, ठीक है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेमन टर्म में ऐसे करता है।
ओके, आईपी के बारे में पढ़ते हैं। आईपी एक कनेक्शन प्रोटोकॉल है व्हिच मींस दैट ईच यूनिट ऑफ डेटा इज individually addressed and routed from the source device to the target device। वही सोर्स डेस्टिनेशन जो मैं बता रहा था अभी। एंड द टारगेट डज नॉट सेंड एज एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सोर्स। There's where protocols such as TCP comes in. TCP is used in junction with IP। TCP और IP साथ में काम करते हैं in order to maintain the connection between sender and the target and to ensure the packeting order। ठीक है। Since TCP is a protocol used mostly commonly on top of IP, the internet protocol stack is sometimes referred to as TCP/IP protocol बोलते हैं इसको, क्योंकि दोनों साथ में ही काम करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं ये कैसे काम करता है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि इनिशियल जो पहला रिक्वेस्ट आता है, जैसे कि मेरे को आपको कुछ भेजना है, तो जो इनिशियल द फर्स्ट हैंडशेक होता है वो कैसे होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो अभी व्हेन एन ईमेल इज सेंट ओवर टीसीपी, जैसे कि एक कोई मेल भेजना होता है, ठीक है, अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड एंड अ थ्री वे हैंडशेक इज मेड। ठीक है, तो फर्स्ट द सोर्स सेंड अ सिन, यहाँ पे सिन इज सिंक्रोनाइज्ड। ओके, इनिशियल रिक्वेस्ट पैकेट टू द टारगेट सर्वर इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ डायलॉग। तो सी ये सपोज ये पहला मशीन ए है, ये बी है, तो अभी इनिशियली स्टार्ट करना है, तो ये क्या बोलेगा, ये एक सिन भेजेगा इसको, ठीक है, बी को। तो सिन क्या करेगा कि जो बी क्या करेगा उसके बाद, तो देन द टारगेट सर्वर सेंड्स एन, ये सिन को बोलेगा, सिन को एक्नॉलेज करेगा कि भाई हाँ मैंने एक्नॉलेज किया कि तुम्हारा मैसेज मिला है, तो उसको हम बोलते हैं सिन एक्ट। सिंक्रोनाइज को वो एक्नॉलेज किया, ठीक है। तो ये पहला ए भेजा इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो ये बोला कि हाँ भाई मैं सिंक्रोनाइज कर लिया हूँ और मैंने तुम्हारा मैसेज एक्नॉलेज किया है, तो ये भेजेगा, इस सिंक्रोनाइजेशन का जवाब ये देगा सिन और एक्ट से। ठीक है, तो यही लिखा है कि टारगेट सर्वर सेंड्स एंड सिन एक्ट पैकेट टू अग्री टू द प्रोसेस। लास्टली द सोर्स सेंड एक्नॉलेजमेंट पैकेज टू द टारगेट टू कंफर्म द प्रोसेस एंड आफ्टर व्हिच द मैसेज कंटेंट कैन बी सेंट। फिर ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ भाई ये लो, ये तुम्हारा है, पैकेट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। तो मैंने भी एक्नॉलेज किया कि वी हैव इन कनेक्ट, वी आर, हमारा कनेक्शन जो है सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड। Now the email message is ultimately break down into packets before each packet is sent out to the internet, into the internet, where it traverses a series of gateways before arriving at a target device, where the group of packets are assembled by TCP into the original contents of this email। ठीक है, इस थ्री वे हैंडशेक में कोई भी इश्यूज है समझने में? नो सर। ठीक है, चलो फिर आगे नो बढ़ते हैं। सर। ठीक है, बट ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और एंड इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। सबसे पहले सिंक्रोनाइज भेजेगा ए टू बी, ये एक्नॉलेज करेगा, तो वही वापस सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और फिर वापस से ये एक्नॉलेज करेगा कि यस वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन। जस्ट यू रिमेंबर दिस। ओके, अभी देखो ये कैसे काम करता है कि पैकेट का फॉर्मेट क्या होता है, जो मैं आपको बोल रहा था कि कैसे सेगमेंट्स को ब्रेक करता है और क्या करता है। ठीक है, तो when sending packets using TCP/IP, the data portion of each IP packet is formatted as TCP segment। ठीक है, ये आपका डेटा है, इसके अंदर सोर्स पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसको आप सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट से कंफ्यूज मत करना, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर डिफरेंट है, और जो सिन और एक्ट है वो इसके अंदर ही होता है। देखो यहाँ पे एक बिट का होता है एक्नॉलेजमेंट और एक बिट का होता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर डेटा के अंदर, बट हमको इतना डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट इसके जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि क्या कैसे होता है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसके। बट अभी के लिए आप इसमें ये जान लो कि एक सीक्वेंस नंबर होता है, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, बट ये जो सिन एक्ट है, ये वाला सिन एक्ट है जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये एक्नॉलेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है ये पैकेट फॉर्मेट। When sending packets using TCP/IP, the data portion of each IP packet is formatted as a TCP segment। ये जो TCP segment है, इसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। Each TCP segment contains a header and a data। ये TCP segments में क्या होता है, हेडर होता है और एक डेटा होता है। ठीक है, the TCP header contains many more fields than the UDP header and can range in the size from 20 to 60 bits होता है, depending on the size of the option fields। The TCP header shares some fields with UDP header, some fields share करता है, जैसे कि सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है, और चेकसम। अभी काम कैसे करता है? ठीक है, पहला एस्टैब्लिश कनेक्शन हुआ, when two computers want to send data to each other TCP, they first need to establish a connection using three-way handshake, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको बताया है कि हम काफी रिपीट करेंगे स्लाइड्स, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ताकि वो आपके दिमाग में एक जगह सेट हो जाए कि हाँ थोड़ा सा आपको जो मेमोरी मसल मेमोरी मिलनी है आपका बिल्ड हो जाए। ठीक है,
So the first computer sends a packet with a SYN bit is set to 1. ठीक है. The second computer sends back the packet with acknowledgement bit set to 1. ठीक है. ये इसका बात कर रहा है, ये जो SYN bit है और acknowledgement bit है. ठीक है. Plus, okay, the second computer sends back the packet with acknowledgement bit set to 1 plus the SYN bit is set to 1. The first computer replies back with acknowledgement. ठीक है. अभी तक इसमें आपको कोई भी डाउट है? नो सर. ठीक है. ओके. उसके बाद क्या होता है? The SYN and ACK bits are both part of TCP header. ये जो है, जो मैं बता रहा था, यही है वो सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट. ठीक है. ये 1 बिट के होते हैं, ये इधर 1 और 0 पे सेट होते हैं. तो जैसा ये बता रहा है कि अभी ये बिट 1 पे सेट हुआ है, एक बिट ये 0 से 1 हुआ. ठीक है. उसके बाद सेकंड कंप्यूटर क्या किया, अपना जो दोनों इसको है वो 1-1 करके भेज दिया हेडर के अंदर. तो पता चल गया कि भाई हाँ. फिर ये क्या किया, ये एक्नॉलेजमेंट को पहले इसने सिन को 1 करके भेजा था, ए वाला भी एक्नॉलेजमेंट को भी 1 करके भेज दिया कि हाँ भाई प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, सेंड पैकेट्स ऑफ डेटा. व्हेन पैकेट ऑफ डेटा इज सेंट ओवर टीसीपी द रिसिपिएंट मस्ट ऑलवेज एक्नॉलेज व्हाट दे हैव रिसीव्ड. ठीक है. अभी जैसे कि ये भेजा है इसने सीक्वेंस, और ये इसने पहले ही भेजा होगा सिंक्रोनाइज करके भी 37, तो इसीलिए एक्नॉलेजमेंट भी 37 इसने यहाँ पे भेजा है. और ये सीक्वेंस नंबर है जो कि हम लोग जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है. तो भाई सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर्स आर पार्ट ऑफ टीसीपी हेडर का ही पार्ट होता है. ठीक है. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये टीसीपी हेडर का पार्ट है. ठीक है. So these two number help the computer to keep track of which data was successfully received, which data was lost, and which data was accidentally sent twice. ठीक है. तो मेन जैसे कि आप पूछ रहे थे ना कि कैसे चेक करता है कौन सा डेटा कब आया, तो यही सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर से ही वो होता है. अभी कनेक्शन कैसे क्लोज होगा ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कि देखेंगे कि कैसे ये काम करता है. बट अभी कनेक्शन कैसे क्लोज होता है, इसमें देखोगे कि आप एक यहाँ पे एक फिनिश बिट है. अगर फिनिश बिट को आप 0 से 1 कर दोगे तो मतलब समझ जाएगा रिसीवर और सेंडर की डेटा ट्रांसमिशन पूरा हो गया है. तो ये यही बोल रहा है, either computer can close the connection when they no longer want to send or receive data. A computer initiates closing the connection by sending a packet with the finish bit set to 1. Okay. The other computer replies with acknowledgement and another finish. After one more acknowledgement from initiating computer, the connection is closed. ये पहले बोल रहा कि चलो भाई इसने फिनिश बिट को 1 किया, इसने एक्नॉलेजमेंट और फिनिश बिट दोनों को 1 करके बोल दिया, फिर ये एक्नॉलेजमेंट को 1 करके बोल दिया ठीक है आई एक्नॉलेज की कनेक्शन को फिनिश करना है. ठीक है. कोई डाउट अभी तक इसमें? नो सर. ठीक है. एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक. ठीक है. एंड देन विल रीजॉइन विद दिस प्रोसेस. ठीक है, चलेगा? यस सर. ओके, चलो.
Guys, let me know when to start and then we'll start. If everybody is available. Okay, so I have an acknowledgement from Prathamesh. So we'll start. Let me share my screen. Okay, I'm totally sharing. So is the PPT visible? Yes, sir. Okay. So अभी तक we have seen कि कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, कैसे कनेक्शन क्लोज होता है फॉर TCP. नाउ विल सी कि TCP एक्चुअली काम कैसे करता है. उसमें अगर पैकेट्स लॉस्ट हो जाते हैं तो वो कैसे डिटेक्ट करता है पैकेट्स. ठीक है, तो TCP कनेक्शन कैन डिटेक्ट लॉस्ट पैकेट्स यूजिंग एक टाइम आउट से करता है. ठीक है, आफ्टर सेंडिंग ऑफ पैकेट द सेंडर स्टार्ट्स a timer, ठीक है, and puts the packet in a retransmission queue. If the timer runs out and the sender has not received an acknowledgement from the recipient, it sends the packet again. अभी 2 मिनट का टाइमर लगा दिया. ठीक है, अभी भेजा सिंक्रोनाइजेशन, अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया अगर रिसीवर्स के पास 2 मिनट के अंदर, तो वो ट्रांसमिशन में लगा देता है और वापस से वो पैकेट रीसेंड होता है. रिट्रांसमिशन में टू रिसिपिएंट, अभी रिट्रांसमिशन में द रिसिपिएंट रिसीविंग डुप्लीकेट पैकेट्स भी रिसीव हो सकते हैं if packet was not actually lost but just very slow to arrive or to be acknowledged. ठीक है, कभी कोई पैकेज डिफरेंट routes ट्रैवल करते होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं. तो अभी कोई तेजी से पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है. तो अभी कोई एक पैकेट बहुत स्लोली है, वो नहीं पहुंच पाया और ये टाइमर का टाइम एक्सपायर हो गया, तो वो डेटा दोबारा भेजा जाता है. अगर दोबारा मिला तो एक ऐसा भी केसेस हो सकता है कि ये बहुत स्लोली गया और ये भी पहुंच गया और जो दोबारा डेटा गया वो भी पहुंच गया, तो क्या होता है, डुप्लीकेसी हो जाता है डेटा का. तो इफ सो द रिसीवर कैन सिंपली डिस्कार्ड डुप्लीकेट पैकेट्स, बिकॉज वो डिस्कार्ड कर सकते हैं डुप्लीकेट पैकेट, बट नो डेटा होने की वजह से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि हमारे पास सेम डेटा ट्वाइस आ जाए. अभी हैंडलिंग आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स, ठीक है, ये कैसे होता है. तो TCP connection can detect out of order packets by using the sequence and acknowledgement numbers. ठीक है, सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट नंबर्स के थ्रू ये डिफरेंट है, हमेशा ध्यान रखना है. वो सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट होता है और ये है सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर्स. तो क्या होता है इसमें कि when a recipient sees a higher sequence number than what they have acknowledged so far, they know that they are missing at least one packet in between. ठीक है, in this situation pictured below, the recipient sees a sequence number of 73 but expecting a sequence number of 37. ठीक है, अभी इसने भेजा है एक्नॉलेजमेंट 37, इसने भेजा हुआ इनिशियली सिंक्रोनाइजेशन में 37 के लिए. ठीक है, तो इसने 37 का एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन ये सीक्वेंस में इसको 73 मिला. बोला कि नहीं भाई 73 नहीं चाहिए, आई वाज आस्किंग, मैंने एक्नॉलेज किया 37 के लिए, तो मुझे 37 चाहिए. तो ये वापस से बोलेगा कि मेरे को 37 का डेटा चाहिए, तो यहाँ से भी वापस बोलेगा तब इसको वापस से 37 नंबर का सीक्वेंस नंबर का डेटा आएगा. So the recipient lets the sender know that there is something amiss by sending a packet with an acknowledgement number set to be expected sequence number. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? सर एक बार और फिर से बता सकते हो? श्योर. इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी डेटा पैकेट्स होता है उसमें एक सीक्वेंस नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है. ठीक है, तो ये कनेक्शन जब एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है, तो अभी ये ए ने भेजा होगा 37 के लिए. ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर 1 मतलब एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें कि 37 इसको भेजना है. ठीक है, तो इसने बोला कि हाँ भाई तू 37 भेजो. ठीक है, बट गलती से पैकेट ये हो गया और सीक्वेंस नंबर 73 गया है इसके पास.
बी के पास, ठीक है। बट इनिशियली इसने क्या एक्नॉलेज किया था इधर से कि 37 नंबर का सीक्वेंस वाला डेटा आएगा और आया 73 वाला, तो इसने बोला कि नहीं मेरे को चाहिए 37 वाला डेटा, क्योंकि मैंने 37 वाला एक्नॉलेज किया है यहाँ पे, तो मेरे को वापस से 37 वाला भेजो, क्योंकि 37 वाला नहीं आया, 37 की जगह मेरे को 73 वाला आ गया है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि when a recipient sees a higher sequence number than what they have acknowledged so far, they know that they are missing at least one packet in between. In this situation pictured below, the recipient sees a sequence number of 73 but expected a sequence number of 37. So उसके बाद the recipient let the sender know that there is something amiss by sending a packet with the acknowledgement number this 37 set to be expected sequence number, ठीक है, समझा आपको? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अभी क्या होता है, sometimes the missing packet is simply taking too slower route than through the internet and it arrives soon after। जैसे कि हम बता रहे थे कि डुप्लीकेट डेटा आ गया, ठीक है। अभी सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, एक्नॉलेजमेंट 37 आया, अभी इस 37 भेज दिया है बट वो काफी स्लो आ रहा है, तो इधर वाला बोला कि टाइमर आउट हो गया, इधर वाला बोला कि भाई, और बीच में वो हम 73 वाला केस देख रहे थे, तो उसे 73 भेजा, बोला 73 नहीं चाहिए मेरे को, 37 ही चाहिए, तो फिर वापस से 37 आया है लेकिन थोड़ा लेट से आया है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि आता है कभी कभी इंटरनेट की स्लोनेस की वजह से भी कभी कभी डिले हो जाते हैं। Other times the missing packet may actually be a lost packet and then the sender must retransmit it। अभी यही सेम सिचुएशन है बट इसमें क्या हुआ, वो लेट से नहीं आया, वो लॉस ही हो गया, ठीक है। तो वापस से इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा 37 के लिए कि भैया 37 भेजा है, एक्नॉलेजमेंट अभी तक आया नहीं, क्योंकि अब मैंने पहले ही भेजा था तो आपने 73 भेज दिया था, और ये जो है वो बीच में लॉस हो गया, तो वापस से इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा और वापस से ये सही वाला सीक्वेंस डेटा भेज दिया है, ठीक है। अभी तक इसमें कोई डाउट? सर बोलिए। सर जो मतलब जो रिसीवर है उसको पहले से कैसे मालूम है कि 37 ही चाहिए मेरे को? उसके पास जो डेटा आ रहा है उसके पास, उसमें तो ऑलरेडी सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑलरेडी है, ठीक है ना, क्योंकि डेटा एक एक बल्क डेटा है, उसको डेटा को तोड़ा हुआ है, तो उसने देखा कि भैया सीक्वेंस में आ रहा है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 5 के बाद 15 आ रहा है, तो बीच के डेटा मिस हो गए, ठीक है। तो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर इसके पास 37 का गया है, इसने बोला कि ये पहले इसको बोला कि 37 का भेजेंगे डेटा, ये इसने एक्नॉलेज किया बी वाले ने कि ठीक है 37 एक्नॉलेज किया, यू सेंड मी 37, तो ये 37 नहीं भेज के ये क्या भेज रहा है, 73 भेज रहा है, क्योंकि इसके पास सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर दोनों है, वो डेटा के जो हेडर में है उसमें पता है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर और सीक्वेंस नंबर दोनों मेंशन किए होते हैं, तो फिर ये टैली करेगा, बोलेगा कि नहीं देयर इज, ये तो पैकेट आया नहीं है 37 का, तो फिर वो वापस से बोलेगा कि मेरे को 37 का पैकेट चाहिए, क्योंकि 37 एक्नॉलेज तुमने सिंक्रोनाइज किया था और एक्नॉलेज भी किया है, बट तुमने डेटा भेजा नहीं है सीक्वेंस पे 37 में, तो वापस से उसको 37 वाला सीक्वेंस को डेटा भेजेगा, क्योंकि एक सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर हर डेटा सेगमेंट्स के आगे जुड़ा हुआ है, तो इट टैली, वो ट्रांसपोर्टर टैली करता है कि कौन सा डेटा आया है, कौन सा डेटा नहीं आया, ठीक है। यस सर। अभी देखो ये यहाँ कैसे हो रहा है, in both situations the recipient had to deal with out of order packet. Fortunately the recipients can use sequence number to reassemble the packet data packet in correct order, ठीक है। ये सीक्वेंस 1 आया, ठीक है, चलो भैया आ गया, अभी यहाँ 37 आना था, 37 नहीं आके 73 आ रहा था, तो उसने वापस से वही सीन एक्ट करके बोला कि मेरे को 37 चाहिए, तो उसके बाद यहाँ पे 37 आया, तो 37 को इसने सही जगह पे ऑर्डर किया, प्लेस किया, और 73 को जो पहले आ चुका उसको उसने नीचे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में वो इन एन ऑर्डर वो ऑलरेडी प्लेस करते जाता है डेटा को, ठीक है। इस स्लाइड से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करता है ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर काम, ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की फीचर्स क्या क्या हैं, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर मसल मेमोरी कि हाँ क्या क्या होता है, ठीक है। तो सेगमेंट नंबरिंग सिस्टम होता है, टीसीपी keeps track of segment being transmitted or received by assigning numbers to each and every single one of them. A specific byte number is assigned to data bytes that are
to be transferred while segments are assigned to sequence number. Acknowledgement numbers are to assigned to receive segments. ठीक है, ये भी हम just देख चुके हैं. Connection oriented protocol है, transmission control protocol. It means sender and receivers are connected to each other till the completion of the process. ठीक है, जब तक आप भी कोई गूगल खोलते हो, जब तक आप खुद से कनेक्शन क्लोज नहीं करते हो, तब गूगल ऐसा थोड़ी बोल देता है कि आउट ऑफ ऑर्डर, या फिर मैं आप कुछ भी आप जो सर्च कर रहे हो बीच में ब्लॉक कर देगा, जब तक कि आपको इंटरनेट इश्यूज नहीं आते हैं, राइट? तो आप लोग तब तक कनेक्टेड रहते हो जब तक कि आप खुद जाके कनेक्शन को तोड़ते नहीं हो. ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि इट मींस सेंडर रिसीवर आर कनेक्टेड टू ईच अदर टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस. द ऑर्डर ऑफ द डेटा इज मेंटेन्ड, दैट इज इट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन. फुल डुप्लेक्स होता है. डीसीपी डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसीवर्स टू द सेंडर और वाइस सेंडर्स और रिसीवर दोनों से भेज सकते हैं. मैं भी आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, आप भी मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, एट द सेम टाइम भी कर सकते हो. ठीक है, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स. फ्लो कंट्रोल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिवाइज करा रहा हूँ. फ्लो कंट्रोल लिमिट्स द रेट एट व्हिच सेंडर और ट्रांसफर डेटा. कैसे अभी मैं 100 Mbps से भेज रहा हूँ किसी भी एक ऐसे डिवाइस को जिसको कि एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी 50 Mbps है, तो वो बोल देगा कि भैया इतने स्पीड से डेटा भेजो, फिर वो 50 Mbps से डेटा भेजेगा. So this is done to ensure reliable delivery. Receivers continually hints to the sender on how much data can be received using sliding window technique. Error control होता है. TCP implements अभी देखा हमने कैसे error control कर रहा है, right? Error control mechanism, reliable data transfer. Error control is byte oriented. Segments are checked for error detection. Error control includes corrupted segment, lost segment management, out of order segments, duplicate segments. ठीक है. Congestion control भी करता है. TCP takes into account the level of congestion in the network. Congestion level is determined by the amount of data sent by a sender. अभी भाई TCP यूज किस लिए होता है, यूज केसेस देखते हैं TCP के. तो TCP is used for organizing data in a way that ensures secure transmission between the server and a client. ठीक है, it guarantees the integrity of data over the network. ठीक है भैया, जो भी डेटा से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं regardless of the amount. For this reason, it is used to transmit data from other high-level protocols that require all transmitted data to arrive. So, example of protocols include ये सब protocols use होते हैं TCP के अंदर, तो ये थोड़ा important है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना. Secure shell use होता है, एग्जाम्स में आता है कि कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं. ठीक है, FTP is file transfer protocol, Telnet, P2P, login to another country, ये सब protocols हैं. ठीक है, Secure shell, FTP, Telnet. SMTP होता है, PUP that is post office protocol, internet message, IMAP for sending and receiving email messages, and HTTP for web access. Use cases of TCP क्या है? Reliable transfer of data होता है, ये बहुत टाइम से सुनना है. reliable transfer of data होता है, तो ये आपको याद रखना है कि reliable transfer of data होता है. One of the main functions of TCP is to ensure reliable data delivery by providing error detection, packet retransmission, and sequence of data packet. It guarantees that the data receive error free and in correct order. ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. वेब ब्राउजिंग के लिए काम आता है. Without TCP, web browsing would not be possible. TCP establishes a network connection between a client, which is the web browser, and the server hosting the website. It guarantees that resources and the web pages are supplied consistently and in the right order. Email delivery के लिए TCP use होता है. TCP is also used for email delivery by establishing a connection between the client and the email server के साथ connection establish करके. ठीक है, and TCP guarantees that emails are delivered and received reliably. कोई डाउट है इसमें अभी तक? नो सर. ठीक है, फिर चलते हैं आगे. अभी फाइल ट्रांसफर के लिए TCP यूज होता है, क्योंकि फाइल अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप ऐसा नहीं कि किसी ऐसा फाइल ट्रांसफर कर रहे हो कि आपने भेजा कुछ और मिला कुछ. तो और फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट फाइल भी आप ट्रांसफर करते हो हमेशा, तो आप चाहते हो कि जो फाइल आप भेजो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो, तो उसके लिए TCP ही यूज करते हैं. फाइल उसके लिए FTP प्रोटोकॉल है. ठीक है, एंड सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक होता है. इट इज सो दैट फाइल ट्रांसपोर्टेड रिलायबली एंड विदाउट एरर्स. रिमोट एक्सेस, TCP is also used for remote access with protocols including Telnet and SSH. मतलब Telnet और SSH से आप एक remote secure connection बना सकते हो. These protocols enable users to access the
and control computer or network devices remotely through a secure connection. Database access कर सकते हो, TCP is used for accessing database over networks. It guarantees the secure and dependable transmission of queries and database responses. क्योंकि ये इतना secure है तो आप ये सब काम easily कर सकते हो TCP use करके. Messaging and chat में भी TCP use होता है. TCP is employed in messaging and chat application to guarantee the dependable delivery of message among users. अभी मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो आपको सही मैसेज पहुंचे, उसके लिए भी TCP का यूज होता है. VPN में भी TCP यूज करते हैं with a VPN to create secure and dependable connection linking remote users with private networks. ठीक है. अभी एडवांटेजेस क्या है TCP के, पहला कब से सुन रहे हैं, वापस से बताता हूँ कि ये काफी एक रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. ठीक है, क्योंकि इसमें एरर डिटेक्शन होता है, पैकेट ट्रांसमिशन का स्कोप है, मिसिंग पैकेट्स को वापस पाने का स्कोप है, पैकेट सीक्वेंसिंग का भी स्कोप है. ठीक है, फ्लो कंट्रोल भी करता है टू प्रिवेंट सेंडिंग टू मच डेटा टू द रिसिपिएंट एट वंस. TCP यूज डेटा फ्लो कंट्रोल मेथड्स टू रेगुलेट द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर. ठीक है, फिर आता है ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स. तो TCP ensures that data packets are received in the same order as they were transmitted by guaranteeing their order and sequence numbers. ठीक है, ये सब आप देख चुके हैं. एरर चेकिंग करता है TCP गैजेट एक्सटेंसिव एरर चेकिंग, आइडेंटिफाइंग फ्लॉज इन द रिसीव्ड डेटा बाय यूजिंग चेकसम्स. कनेक्शन ओरिएंटेड TCP क्रिएट्स, ये चेकसम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से क्या होता है, कैसे होता है. Connection oriented क्या होता है, TCP creates a link between a sender and recipient to guarantee a dependable and steady communication link. सही है. Universal support TCP in conjunction with IP represent an open industry standard. It's a scalable protocol होता है that serves as a cornerstone of internet and facilitates universal connectivity and communication between devices across the globe. ठीक है, advantages of TCP में कोई भी डाउट है? नो सर. ठीक है, अभी एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होगा. तो अभी डिसएडवांटेजेस क्या है TCP के कि ओवरहेड. तो इतना रिलायबिलिटी फीचर्स है TCP में कि मतलब स्लोअर ट्रांसमिशन होता है क्योंकि इतने प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें. तो समटाइम्स इसका एक इशू होता है, लेटेंसी इश्यूज होता है. द मेथड ऑफ डिलीवरी यूज्ड बाय TCP इंक्लूड्स एक्नॉलेजमेंट्स और रिट्रांसमिशंस होता है, तो व्हिच कैन समटाइम्स ऐड लेटेंसी दैट कैन अफेक्ट रियल टाइम एप्लीकेशंस. ठीक है, उसके बाद है कंजेशन कंट्रोल. और ये एक सेकंड, क्या पढ़ रहा था, हाँ, लेटेंसी. द मेथड ऑफ डिलीवरी यूज्ड बाय TCP इंक्लूड्स एक्नॉलेजमेंट्स एंड रिट्रांसमिशंस. ठीक है, व्हिच कैन समटाइम्स ऐड लेटेंसी दैट कैन अफेक्ट रियल टाइम. हाँ, तो लेटेंसी मतलब होता है कि एक डेटा पैकेट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे कितना टाइम लगता है. ठीक है, तो अभी इतने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कि हो सकता है कि ज्यादा टाइम लगे, तो वो लेटेंसी इश्यूज हो सकता है. कंजेशन कंट्रोल टू अवॉइड नेटवर्क कंजेशन, TCP कंजेशन कंट्रोल टेक्निक कैन स्लो डाउन डेटा ट्रांसफर. ठीक है, डेटा ट्रांसफर स्लो हो सकता है कंजेशन कंट्रोल फंक्शनैलिटी की वजह से. सो दिस कुड बी अ ड्रॉबैक व्हेन हाई स्पीड ट्रांसमिशन. अभी हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन चाहिए बट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कि वो सारे चीज को चेक करके, क्योंकि TCP का मेन ही मकसद है डेटा ट्रांसफर, रिलायबल डेटा ट्रांसफर. चाहे उसके लिए डेटा थोड़ा लेट ही पहुंचे बट डेटा सही पहुंचाना ही मेन मकसद है TCP का. ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है. डिजाइन नेसेसिटीज, TCP connection oriented design necessitates extra expense for the creation and upkeep of connections, while this feature might not be required for many applications. ठीक है, जनरलिटी में पढ़ते हैं क्या है, TCP specifically tailored to TCP IP suite and that cannot be applied to represent other protocol stacks. अभी TCP के थ्रू ब्लूटूथ कनेक्शंस नहीं कर सकते हो. ये क्या है, मतलब कि कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते हो बिकॉज इसके प्रोटोकॉल्स वैसे डिजाइन किए हुए हैं. ठीक है, bandwidth का issue in contrast to UDP's straightforward method, the back and forth communication required for connection formation, acknowledgement and retransmission in TCP can sometimes use more bandwidth. ठीक है, application using massive data transfers across networks with constrained bandwidth might find this problematic. ठीक है, इसमें कोई डाउट है?
डिसएडवांटेजेस में टीसीपी के? नो सर। ठीक है, तो मेरे को आज यहीं तक पढ़ाना था। अगर आपको आगे यूडीपी पढ़ना है तो मैं आप आगे पढ़ना चाहोगे, या फिर shall I stop the lecture now and we'll discuss UDP and one more protocol tomorrow, because we have total of 72 slides. So I thought of sharing these two with you, transport layer and TCP, and UDP and SCTP I thought of teaching tomorrow, because SCTP thoda ye hai, it's a little bit tricky to understand. Yes, sir. So is it yeah, sorry, someone was speaking something but it got lost. सर चलेगा आज भी। चलेगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, फिर यूटीपी पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी आता है यूडीपी। यूडीपी क्या होता है कि ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। इट्स अ लाइटवेट डेटा प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ आईपी, ठीक है। UDP is a network protocol that operates at the transport layer of internet protocol। ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही काम करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के ही प्रोटोकॉल्स हैं TCP और UDP। और it is designed to provide a lightweight and low overhead method for sending datagrams or chunks of data across a network, ठीक है। Unlike transmission control protocol, which provides reliable and ordered data delivery, UDP is a connectionless communication protocol. This means it does not establish a connection between a sender and receiver before data transmission. Instead, UDP treat each datagram as an independent unit with no guarantees of delivery or order. तो इसमें जो हमने देखा था हैंडशेक, वो नहीं होता है, ठीक है। एक कनेक्शन नहीं बनता है कि सिन और एक्नॉलेज वाला, क्योंकि इसका मकसद वो है ही नहीं। इसका मकसद है कि डेटा को तेजी से भेजना है, ठीक है। बट इसमें वो नहीं है कि डेटा का डिलीवरी जो है वो रिलायबल है और इन ऑर्डर है, ठीक है। इससे उसको मतलब नहीं है। इट सिंपली वांट्स टू सेंड डेटा इन अ फास्टर वे, ठीक है। अभी देखते हैं। UDP provides a mechanism to detect corrupt data in packets, but it does not attempt to solve other problems that arises with packets, such as lost or out of order packets. That's why UDP is sometimes called unreliable data protocol. But you don't go with this form. The correct abbreviation is user datagram protocol, ठीक है। बट इसको बोलते हैं कि अनरिलायबल डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, बिकॉज TCP जितना रिलायबल था उतना रिलायबल ये UDP नहीं है। UDP is simple but fast, at least in comparison to other protocols that work over IP. It's often used for time sensitive applications such as जैसे रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए UDP यूज करते हैं, क्योंकि उसमें अगर एक दो पैकेट्स मिस भी होगा, अगर बीच के 2 सेकंड वीडियो के आपको गायब भी होगा, तो कुछ उतना इश्यूज नहीं होगा आपको, राइट। बट अगर आप कोई मेल भेजा और वो मेल सही नहीं पड़ी, तो उससे आपको ज्यादा इशू होगा। इसलिए दैट फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वी यूज TCP, and for information which needs to go live or go quickly we use UDP, ठीक है। However, the lack of reliability of UDP can also be drawback in certain scenarios, since it is not provide acknowledgement or retransmission. Any lost or corrupted packets may go unnoticed, ठीक है। This makes UDP less suitable for applications that require guaranteed delivery, such as file transfers or emails. अभी तक कोई डाउट है UDP में? नो सर। ठीक है, मूव ऑन। तो UDP कैसे काम करता है? UDP acts in a simple way by transferring data between two devices in a network. It transmit packets straight to the target device without setting a connection, specifying the packets order or examining if they are delivered as arranged, ठीक है। डायरेक्ट कोई सिन एक्नॉलेज सिन कुछ नहीं हुआ इसमें, डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, डेटा भेज दिया। How UDP works? Data packet creation. To send data app creates a UDP packet with a header. इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है वो हेडर में। And a payload. The header contains metadata like source and destination port numbers, ठीक है। Transmission. The UDP packet is sent over the network without any handshaking or acknowledgement processes, ठीक है। This means that the sender does not wait for a response or confirmation from the receiver, ठीक है। इसमें मतलब वही बता रहा है कि नेटवर्क पे होता है बट हैंड चेकिंग और एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस नहीं होता है। राउटिंग, राउटर्स ऑन द नेटवर्क
forward the UDP packets towards the destination based on the destination IP address जो कि इसके header में होता है already. Reception with the UDP packet reaches the destination host, the UDP protocol stack forwarded to the appropriate application based on a destination port number specified in the header में destination port number होता है, वो डेटा को जहां जाना है वहां भेज देता है. Data processing, the receiving application extracts the data from UDP packets and processes it. ठीक है. Unlike TCP, UDP does not resemble packets or ensure that they arrive in order. इसको order से कोई मतलब नहीं है. It's up to the program to handle packet loss, duplication or out of delivery if necessary. No connection termination. UDP has not a connection termination phases like TCP. जैसे कि उसने finish को 1 कर दिया था check, तो डेटा मतलब समझ गया कि अभी कनेक्शन क्लोज करना है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. Once the UDP packet is sent, एक बार UDP पैकेट सेंड हो गया तो कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड कंप्लीट. अभी ये UDP हेडर कर रहा है. UDP हेडर होता क्या है, ठीक है. तो UDP operates with headers. It used them for packaging the message data to be sent over the network. ठीक है, कोई भी डेटा है उसको उसके ऊपर समझो कि एक पैकेट है जो उसका हेडर है. Each UDP header includes several parameters also known as fields, और उसमें बहुत सारे fields होते हैं which are determined by technical specification of the protocols. ठीक है. The UDP header contains 4 मेन फील्ड होते हैं, ठीक है, और हर फील्ड जो होते हैं वो 2 बाइट्स के होते हैं. तो the UDP header has the following fields. Okay. ठीक है. तो कौन कौन से फील्ड्स हैं भाई UDP के? पहला सोर्स पोर्ट है, एक 16 बिट डेटा होता है. Specify the precise port which is going to send to the packet. ठीक है, किस पोर्ट पे डेटा जाना है. Source port. In this case, the target device does not need to reply to the sender. This field could be set to 0. ये source port को 0 सेट कर सकते हैं, ठीक है. फिर आता है एक destination port, जहां डेटा को जाना है. ये जहां से डेटा आ रहा है, ये जहां जाना है. तो ये डेटा it's a 16-bit data that serves to specify application level services on the target device, meaning the port of the device of the receiver device receiving the data. It could be between 0 to 65535. ये होता 65536 है, but they are considering 0, इसलिए ये 65535 है. Length, it defines entire number of bytes including the UDP header and the UDP data packets for transfer. ठीक है. The precise limit of UDP length field is defined with the underlying IP protocol utilized to send the data. ठीक है. ये हम आगे पढ़ेंगे ये जस्ट स्लाइड में कि क्या बोल रहा है. सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सेगमेंट लेंथ और चेकसम. ठीक है. तो यही ये सेगमेंट लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है. चेकसम क्या होता है कि एक 16 बिट फील्ड होता है. ये ऑप्शनल फील्ड है फॉर UDP. द चेकसम गिव्स एबिलिटी फॉर the receiving device to confirm the integrity of packet header and payload. It is an optional field, meaning the application wants the checksum or not. In case if it does not want the checksum, then all of the 16 bits are zero. In UDP, the checksum field is used for a header and a data part. In IP, the checksum field is used only for the header field. It is optional in IPv4, yet it is required in IPv6. इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. अभी आपको ये याद रखना है कि ये 4 फील्ड्स होते हैं UDP के. जैसे कि TCP में भी और बहुत कुछ था. एक्नॉलेजमेंट नंबर था, सीक्वेंस नंबर था, ACK था, सिंक्रोनाइजेशन था, एक्नॉलेजमेंट था. तो इसके मेनली यही फील्ड होते हैं डेटा के. ठीक है. एक सोर्स पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, एक सेगमेंट लेंथ होता है और एक चेकसम होता है. ठीक है. इसमें कोई डाउट है? ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये UDP और TCP सेगमेंट डेटा कैसे होते हैं. ठीक है. यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं. पैकेट का फॉर्मेट क्या है? When sending packet using UDP over IP, data portion of each IP packet is formatted as UDP segments. तो पोर्ट नंबर्स होते हैं. तो फर्स्ट 4 बाइट ऑफ UDP header store the port numbers for the source and destination. तो ये जो 4 बाइट्स है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होल्ड करता है. A network device can receive messages on different virtual ports, similar to how an ocean harbors can receive ports on different ports. ठीक है. ये मतलब एज एन एग्जांपल दिया हुआ है कि नेटवर्क डिवाइस कैन रिसीव मैसेजेस ऑन डिफरेंट वर्चुअल पोर्ट्स. क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स में बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं डिफरेंट से. तो जैसे कि एक हार्बर पे, ओशन में एक हार्बर होता है, वहां पे डिफरेंट पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स जो डिफरेंट पोर्ट्स पे रिसीव होते हैं. तो उसी टाइप से ये भी है. द डिफरेंट पोर्ट्स हेल्प डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक. ठीक है.
अभी सेगमेंट लेंथ क्या होता है? द नेक्स्ट 2 बाइट्स ऑफ यूडीपी हेडर विल स्टोर द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट इंक्लूडिंग 2 हेडर्स. 2 बाइट is 16 bits, so the length can be as high as this binary number. इतना segment length हो सकता है. इस decimal that is 2 raised to the power 16 minus 1 is because of the zero we are considering. So 65535 is the total length हो सकता है. ठीक है, ये आप याद रख लेना कि इतना segment length का डेटा बाइट्स होते हैं segment length. ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेगमेंट इज 65535 बाइट्स, क्योंकि 16 बिट होता है. 16 बिट इज 1 बिट इज 8 बाइट्स. तो ऐसे से करोगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, 2 raised to power 0 ऐसे करके करना होता है ये. इफ यू नीड I'll explain you in the later classes. अभी ये checksum is very important. तो the final 2 bytes of UDP header is the checksum. ये हम TCP में यूज करते हैं. तो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे यूज कर सकते हैं. तो a field that used by sender and receiver to check data is corruption before sending of the segment. Before sending of the segment, the sender क्या करता है कि computes the checksum based on data in the segment and stores the computed checksum in the field. अब ये compute कैसे करता है वो हम next slides में देखेंगे. ठीक है, बस आपको याद रखना है कि senders क्या करता है, compute करता है और store करता है उस UDP उस header field में. ठीक है, upon receiving the segment, recipient क्या करेगा, compute करेगा checksum based on received segments. जो segment receive हुआ उससे और इसको जो पहले checksum store हुआ था उससे वो मैच करेगा. ठीक है, compares the checksum to each other. If checksum aren't equal, it knows the data was corrupted. तो पहले ये भी कंप्यूट करेगा जो डेटा आया है, उसके बाद कंपेयर करेगा इसके साथ. ठीक है, अभी देखो मैं बताता हूँ. टू अंडरस्टैंड हाउ checksum can detect corrupted data, let's follow the process to compute a checksum for a very short string of data. एक होला करके एक डेटा है. ठीक है, तो फर्स्ट द सेंडर वुड इनपुट होला इनटू, ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो HOLA, इसको बाइनरी में तुम कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, ये 4 बाइट का डेटा है 001. ये आप लोगों को बेसिक पता होगा, राइट? डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, है ना? यस सर. ठीक है, तो मान लो इमेजिन ये 4 बिट का डेटा है, इसको कंप्यूट किया, क्योंकि कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड zeros and ones, राइट? अभी क्या हो गया, नेक्स्ट क्या करेगा यूडीपी हेडर के अंदर, चेकसम के अंदर, सेंडर सेगमेंट्स, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो कर रहा है कंप्यूट, तो ये यही काम कर रहा है ये. नेक्स्ट, द सेंडर सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू 2 बिट ऑफ 16 बिट नंबर्स. ठीक है, तो इसने ये जो 4 बिट है इसको ये दोनों को जोड़ दिया और ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे ऐसे कर दिया. ठीक है, 01, तो इसको 2 बिट के 16 बिट नंबर बना दिया. अभी क्या कर रहा है, टू कंप्यूट द चेकसम सेंडर एड्स ऑफ द 16 बिट नंबर. अभी ये दोनों को इसने ऐड करके ये एक नया नंबर लेके आया है. ठीक है, सिंपल कुछ नहीं किया है. ये 4 बिट के थे, इनको 2 बाइट में डिवाइड किया, फर्स्ट 2 को और लास्ट 2 को एक साथ जोड़ दिया और दोनों को सम कर दिया. ठीक है, तो विद द computer can now send the UDP segment with the encoded होला as data, and होला डेटा भेजा है और जो चेकसम है वो ये है, क्योंकि हमने HO और LA को यहाँ लिया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो नंबर आया है उसको चेकसम में डाल दिया. ठीक है, अभी तक इसमें कोई डाउट है यहाँ तक में? नो सर. ठीक है, नो सर. ठीक है, अभी जो यूडीपी का हेडर होगा वो अभी कैसा दिखेगा, ये है सोर्स पोर्ट नंबर, ये है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये है लेंथ, ये है चेकसम जो उसने दोनों को ऐड करके भेजा है. ठीक है, और ये जो डेटा था हमारा HOLA. ठीक है, ये होला है और ये उसका चेकसम है ऐड करने के बाद. अभी क्या होगा कि मान लो ये होला से मोला हो गया रास्ते में. ठीक है, तो अभी जो ये चेकसम है ये होला का है. अभी ये सेंडर एंड पे, अभी रिसीवर एंड अभी रिसीव किया मोला, तो मोला को भी वो ऐसे बिट्स में तोड़ेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर उनको ऐड करेगा. ऐड करने के बाद फिर वो कंपेयर करेगा कि अरे भाई रिसीव होना था 1011 0100 110, रिसीव तो हुआ नहीं क्योंकि ये होला का है और मोला का तो डिफरेंट होगा. तो वैसे ही वो करता है चेक. The checksum will be different. The recipient cannot programmatically compare the checksum they received in the UDP segment with the checksum they just computed. ठीक है, when the recipient discovers that the two checksum are different, it knows that the data was corrupted somehow along the way. But unfortunately, the recipient cannot use the computed checksum to reconstruct the original data. So it will likely just discard the packet entirely. क्योंकि इसके पास ये डेटा को सही नहीं कर सकता है. ठीक है, समझ गए आप लोग मैं क्या मतलब? इट्स जस्ट द जिस्ट ऑफ इट कि ये ऐसे करता है. इट्स जस्ट एन एग्जांपल.
कि ये चेकसम क्या होता है और चेकसम कैसे कंप्यूट करते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं। इसमें कोई भी डाउट है आप लोग को? और मैंने जस्ट एग्जांपल देख के समझाया था कि जस्ट इजीली आप समझ जाओ कि ये कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। नो सर। अभी ये है कि टीसीपी वर्सेस यूडीपी। टीसीपी इज एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसमें कि सिम ऐप वाला कनेक्शन हम एस्टैब्लिश करते हैं होस्ट और क्लाइंट के बीच में। ये यूडीपी है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, टीसीपी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, यूज्ड फॉर वॉइस ओवर आईपी स्ट्रीमिंग, वीडियोस, गेमिंग एंड लाइव ब्रॉडकास्ट में यूडीपी यूज करते हैं क्योंकि उसमें फास्ट डेटा चाहिए, रिलायबल नहीं चाहिए। आप गेम खेल रहे हो, बीच में कुछ भी हो गया तो उस डेटा में अगर कुछ स्किप भी हो गया तो उसके फर्क नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, वीडियो स्ट्रीम में भी अगर कुछ मिस हो गया, स्किप हो गया तो फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रहे हो, मेल्स भेज रहे हो या कुछ वेबसाइट पे कुछ देख रहे हो तो उसमें अगर आपको एरर आता है तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। Guarantees that no packets are missing and all the data that seems make it to the intended recipient। ठीक है भैया, faster and needs fewer resources। ये faster है और इसमें इतने ज्यादा resources नहीं होते हैं। Sends packet in order so that they can be stitched back together easily। Packet does not necessarily arrive in order। ठीक है, slower and require more resources। Allows missing packets but the sender is unable to know whether the packet has been received। Has a bigger header than UDP but suited for apps that need high reliability and transmission time is relatively less critical। ठीक है, better suited for applications that need fast, efficient transmission such as games। ठीक है, ये डिफरेंस था टीसीपी और यूडीपी का। अभी एडवांटेजेस क्या क्या है यूडीपी के? स्पीड सबसे पहला एडवांटेजेस है इसका। UDP is faster than TCP because it does not have the overhead of establishing a connection and ensuring reliable data delivery। ठीक है, lower latency होता है। ठीक है, since there is no connection establishment, there is lower latency and faster response time होता है। Simplicity है, UDP has a simple protocol design and TCP making it easier to implement and manage। Broadcast support, UDP support broadcasting on multiple recipients making it useful for applications such as video streaming and online gaming। ठीक है, smaller packet size होता है। UDP uses smaller packet sizes than TCP which can reduce network congestion। ठीक है, and improve overall network performance। UDP is more efficient in terms of both latency and bandwidth। ठीक है, अभी तक कोई भी डाउट है इसमें एडवांटेजेस ऑफ UDP में? नो सर। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये रिलायबल नहीं है क्योंकि ये चेक ही नहीं कर रहा है ना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। तो UDP does not guarantee delivery of packets in or order of delivery which can lead to missing or duplicate data। ठीक है, no congestion control। UDP does not have a congestion control which means that it can send packets at the rate that can cause network congestion। मतलब ये 100 Mbps भेज रहा है, अगर डिवाइस 50 Mbps पे तो वो बोल नहीं सकता है, उसको करना है वो करे, एक्सेप्ट नहीं करना है नहीं करे। ठीक है, vulnerable to attacks। UDP is vulnerable to denial of device attacks where an attacker can flood the network with UDP packets, overwhelming the network that cause it to crash। ठीक है, नेटवर्क अटैक मतलब ये अटैकर्स इजीली जो है TOS अटैक्स कर सकते हैं, denial of service attacks इसके ऊपर। Limited use cases and UDP is not sufficient suitable for applications that require reliable data delivery, of course, such as email or file transfer, and it is better suited for applications that can tolerate some data loss, such as video streaming and online gaming। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है, so this is what I had in mind for today's class, guys। Tomorrow we'll discuss this because I have to prepare more slides on this। ठीक है, so today we have just discussed the two most important protocols of transport। We have discussed transport layer and the two most important protocol TCP and UDP, and then tomorrow we will discuss about SCTP and then we'll move ahead along with the subject। Okay, अभी तक आपको ट्रांसपोर्ट लेयर TCP UDP में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। ठीक है, so hope today's session was informative to you guys। Hope you have learned something new। यस सर, So I'm थैंक यू सर। closing the session। No problem, I'm closing the session। I have marked your attendance। ठीक है, I'll hope to see you all tomorrow as well। Okay।
थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you. Bye bye, guys. Take care. Happy Thank you, Dashera. sir. Okay. Thank you, sir. Happy Happy Dasara, sir. Dasara, sir. हैप्पी दशहरा सर। Okay. Bye bye.